मुझे लगता है कि शायद इंडिया में अभी ऑफिस वेयर को बहुत कैजुअली लिया जाता है, एंड देयर इज नो रूल. आई मीन द ओनली रूल विच इज देयर फॉर ऑफिस वेयर इज दैट देयर इज नो रूल. अब इसको एक ओपन कल्चर की तरह भी लेते हैं कि मेरे ऑफिस में कोई रूल्स नहीं है, आई कैन वेयर एनीथिंग टू वर्क. और अगर रूल्स लगाएं तो उसको वो बहुत ही ट्रेडिशनल थिंकिंग माना जाता है कि ये क्या लाला कल्चर है, व्हाट फॉर्मल्स. तो but then there should be a fine line between the two. There should be a fine line, and see, eventually it is luckily in our hands how we want to portray ourselves. अभी जैसे अमेरिकन कल्चर आई सेड बहुत रिलैक्स्ड होता जा रहा है. यूके कल्चर, ब्रिटिश कल्चर अभी भी फॉर्मल है. जापान में इफ यू डोंट वेयर दीज formal suits, it's considered very rude. India is evolving. अब थोड़ा हम ध्यान दे रहे हैं, but there are so many things. If you are at a position of authority, wear darker colors, wear suits. If you're someone under, still have a high position, just wear a blazer. फिर मैच सूट पहनने की जरूरत नहीं है. एक ब्लेजर और लाइटर शर्ट इनसाइड, सॉफ्टर कलर ब्लेजर. If someone is at very high authority, a black, navy blue, dark blazers, वो सब जरूरी है. For women, wear collars. Less skin show. मतलब not a deep neck, nothing that is sleeveless or short sleeves or mega sleeves. Try and wear full sleeves. That gives a more power. जितना less skin show होगा, even in your shoes, closed shoes are preferred because open shoes are dressy. They are good for your evening wear. Yeah, right. फिर transparent clothing, make sure उसमें opaque lining हो. Try to wear a lot of lines. Okay. Wear darker colors in office. Okay. Darker colors always give a message serious. Soft or bright colors give a message fun. Okay. Accordingly choose. All right. अगर आप देखोगे एयर इंडिया का जो यूनिफॉर्म है, okay, even the blouse has a collar. Why? Because collars look structured. They add structure to your They look. add structure. And once you add structure, you are adding some power and authority. Absolutely. So, actually, let me share this thing which is very valuable. There are 4 types of levels. And there is no right or wrong. Okay. It depends on your occasion. First is untailored, जिसमें आप बिल्कुल कैजुअल घर में जैसे हम पहनते ना, एक राउंड नेक टी शर्ट पहन लिया, एक स्कर्ट या पैजामा पहन लिया, जिसमें कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है. Roundness is always considered very, very soft. The moment I add lines, I go sharper. Yeah. So the moment I add collars to my tops या shirts, I move on to the second level of dressing, which is called casual tailored. अब उससे और ऊपर जाओ, एक थर्ड लेयर ऐड करो. इट कैन बी एनीथिंग. आपने लिनन जैकेट पहना है फॉर एग्जाम्पल, या एक जीन्स के ऊपर ही एक ब्लेजर पहना है, इवन दो यू आर रोलिंग द स्लीव्स अप, एक थर्ड लेयर आ गया. एक लॉन्ग श्रग पहना है, ओवरकोट पहना है, इट विल स्टिल गिव मोर power and authority. You're rising in the level of authority, which is softly tailored. Okay. And the last one is fully tailored, जिसमें आप मैच्ड सूट पहन रहे हो. मतलब जो आपने ऊपर पहना है, इट इज अगेन 3 पीस. जो आपने ऊपर ब्लेजर पहना है, उसी फैब्रिक का नीचे ट्राउजर है, विच इज मैचिंग. और अंदर शर्ट होगा, टाई होगा, आप कुछ भी ऐड करो. तो एज यू गो हायर in lines, in structures, in angular shapes. Angular shapes meaning जहाँ ज़्यादा lines दिखे. Lines की क्या psychology? Lines are rigid. ठीक है? There are no curves. There's no softness. Oh. So they are rigid. So they give you that sense of being powerful, dominant. Now, if I'm wearing a rounded thing, it is soft. It has curves. दोनों संडे टी शर्ट्स है. वो कॉलर्ड टी शर्ट्स होते हैं ना विथ चेक्स, सॉरी विथ स्ट्राइप्स. और दूसरे ने सिंपल क्रू नेक टी शर्ट, मतलब राउंड नेक टी शर्ट. तो भी आपको किस में ज्यादा अथॉरिटी दिखेगा? ऑफ कोर्स कॉलर्स ऐड होते हैं, अथॉरिटी. कॉलर्स बिकॉज दे आर स्ट्रेट लाइंस. थोड़ा रिजिडनेस आ गया, वो सॉफ्टनेस को ब्रेक कर दिया हमने. सो एज वी गो हायर, लाइंस गेट एडेड, फर्मनेस गेट एडेड, लेयर्स गेट एडेड, and colors get darker as we progress higher. You can actually change your game by just wearing the right everything. That outfit. is what image management is, and now fortunately people are understanding. Yeah. There are 4 levels, starting from round collars to adding third layers, not matching zaruri nahi hai, to adding the 4th and the fully tailored level is everything is matched.
That looks very polished. That looks very और polished. उसमें ऐसा लगता है कि बहुत एफर्ट डाला है. I mean, आपने वो मैच करने के लिए. So because that is the message he wants, I want to give. Being a CEO of the company, I want to look authoritative. I want to be dominant. I want to be taken seriously. There is no nonsense air about me. True. और उसमें भी जितना डार्क आप जाओगे, अब सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट. द हाईएस्ट कॉन्ट्रास्ट. तो कभी भी आप देखो, ये जैसे रेड कार्पेट इवेंट्स होते हैं, ये कहाँ से आया? दे वॉन्ट टू लुक अ सर्टेन वे, पावरफुल, इम्पैक्टफुल, इम्प्रेसिव. तो टक्सीडोज आर ऑल्सो ब्लैक एंड व्हाइट मोस्ट ऑफ द टाइम. Yes. ब्लैक एंड व्हाइट सूट पहनते हैं. अगर आपको सॉफ्ट करना है, थोड़ा सा अथॉरिटी कम करना है, बिकॉज आई एम मीटिंग समवन हु इज ऑल्सो एट द सेम अथॉरिटी, हम लोग कॉर्पोरेट में नहीं मिल रहे, वी आर मीटिंग फॉर अ लंच बट टू डिस्कस बिजनेस, तो आई गो सॉफ्टर ऑन माई ब्लेजर कलर. मे बी आई वेयर अ लाइट ग्रे और अ बेज और नेवी ब्लू. Okay. तो playing with colors, playing with the structure, you can tone down, you can dress down or you can dress high. I read this line और उसके बाद से मैंने अपनी ड्रेसिंग को सीरियसली लेना शुरू किया. When I read dress how you want to be addressed. Correct. Dress how you want to be addressed. So if you really want to look powerful, establish yourself, you should dress that way. Instagram पे हम दोनों हैं, सोशल मीडिया पे 30 सेकेंड्स वीडियोस क्यों बनाते हैं? हम क्यों नहीं 10 मिनट का बनाते हैं? इंस्टाग्राम ने इतनी लिमिट क्यों दी है? बिकॉज अटेंशन स्पैन ही उतना है. 3 to 5 सेकेंड्स पहले सुनोगे, जो ऑडियंस है वो सुनने के पहले हमको देखेगी. हम कैसे लग रहे हैं, प्रेजेंटेबल है, हमने अच्छा विजुअल इफेक्ट्स डाला है, तो हम देखेंगे विजुअल्स अगेन. अब मैं बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ओके, लेकिन मेरा विजुअल ब्लरी है, थोड़ा बैकग्राउंड बहुत शैबी है, अच्छा नहीं है, लाइट्स डिम है, मेरा विजुअली जब अच्छा नहीं है, तो मैं कितना भी इंपॉर्टेंट मैसेज दूँ, कोई नहीं सुनेगा. सेम चीज इसमें है. ओके, सो हमने बोला कि ये इतना वो लेवल अप होता है प्रोफेशनल ड्रेसिंग में, लाइंस एंड कॉलर्स एंड एवरीथिंग, एंड ऑल ऑफ दिस मेक्स सो मच सेंस. देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस हियर जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ. पीपल लाइक मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स इतना कुछ अचीव कर चुके हैं, लीडरशिप पोजीशंस पे हैं, एंड येट दे वेयर सिंपल बेसिक क्लोथिंग. आई एम आस्किंग बिकॉज वो तो इस पोजीशन पे, इस लेवल पे हैं दैट दे अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस. दे आर वेयरिंग व्हाट दे आर वेयरिंग बिकॉज नाउ दे डोंट वांट टू प्रूव एनी मोर, एंड दे डोंट नीड टू. वो जो अपना काम करना था कर चुके हैं. स्टीव जॉब्स अपना एक प्रपोजल लेकर गया था, एंड ही वांटेड दैट पार्टी टू फाइनेंस देम. स्टार्टअप था उनका. तो वो गया, एंड नाउ ही इज अ टेक गाय. टेक गाइज डू नॉट अंडरस्टैंड फैशन गेम एज मच. उनको पूरा भरोसा है इस प्रोडक्ट पे, एंड एवरीथिंग इज फंडामेंटली राइट. बाय थियोरी, ऑन पेपर उनको मिलना चाहिए, बट ही डिड नॉट गेट द फाइनेंसिंग, एंड दैट इज व्हेन ही रियलाइज्ड द अदर गाय प्रेजेंटेड हिमसेल्फ वेरी वेल. 3-piece suit, matching tie, square, pocket square, polished shoes. So already he was in that zone. That I am already like a partner to you. I'm behaving like a partner to you. Now this guy is going in a t-shirt. Visually, that guy जो financer था और this guy don't even stand together. कहीं close भी नहीं आ रहे. तब उन्होंने अपना dressing change किया. Okay. He got 2-3 deals, and later in life, he came down to wearing those turtlenecks and jeans again. But he had to do his bit of hard work even in dressing that time. Okay. And including Mark Zuckerberg, he started at the age of 20 or 22, I guess. He was quite young. Right after his college. In fact, while in while in his university. So he had started his work then. He was completely into his work. And he was, I think by the age of 27 or 30, he was already a billionaire. After that, his dress code was set. तो आप वो लेवल पे पहुंच जाओ ना, then you're dressing, you dress whatever, you come in shorts, कोई नहीं कुछ बोलेगा. But to come there, you will still have to go through those efforts. Yes. या तो आपका काम इतना बड़ा हो गया है कि आपसे बड़ा आपका काम हो चुका है. Having said that, ये तो हमने इनके एग्जाम्पल्स ले लिए, लेकिन आज भी मुकेश अंबानी को आप देखो, ही इज स्टिल इन हिज 3-piece सूट. वो कभी भी आपको टी शर्ट या जीन्स में नहीं दिखेंगे.
Right. कैसा भी ओकेजन, कुछ भी ठीक है, इंडियन ओकेजन में कुर्ता होगा, बट यूजुअली उनके कुर्ते पे एक और नेहरू जैकेट या मोदी जैकेट होता है यूजुअली, बट वो इंडियन वेयर हो गया. बट अदरवाइज आप उनका बहुत बहुत कम इंटरनेट पे आपको पिक्चर्स दिखेंगे वेयर ही इज नॉट इन अ 3-piece सूट. वो आज भी अपने इमेज को इतना इम्पोर्टेंट लेते हैं. दिस इज ऑल्सो बिकॉज हमने जिनकी एग्जाम्पल्स ली वो टेक बैकग्राउंड से हैं. उनके लिए उनका प्रोडक्ट बहुत बड़ी चीज है. हम अंबानीज की बात कर रहे हैं, दे कम फ्रॉम बिजनेस, they and they are the face of the business. Exactly. They can't mess up with their image. And day and night they are sitting with very big people, business people. They're doing trade day and night, international. So they have एक international standard होता है, एक decorum होता है which you have to maintain. Exactly. You cannot be, नहीं तो क्या, you are giving the message or that vibe of being very careless. वो attitude नहीं चलता है फिर. Talking about that, what are the don'ts of corporate dressing? कुछ हमने डिस्कस किए, बट अगर उसमें और कुछ if you would like to add. Yes, there are many don'ts actually. बहुत ज़्यादा light, bright prints मत पहनो ऑफिस में. Wear prints which are very subtle, small, like polka dots, self textured fabrics. Wear fabrics जो बहुत प्रीमियम हो. प्रीमियम मतलब जरूरी नहीं है रिच हो, जिनका फील अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो. Okay. लूज थ्रेड्स, फिर वो स्क्रेप्ड या फेडेड लुक, दैट विल नॉट अपील. वो अच्छा नहीं लगेगा. ट्रांसपेरेंट तो पहनो ही मत. नेक शोइंग, इवन मेन नेक शोइंग मतलब 2 बटन्स मत ओपन रखो. इट डज नॉट लुक गुड, इट डज नॉट लुक प्रोफेशनल. एक ही बटन जो फर्स्ट होता है दैट इज ओपन, बाकी सब बंद होने चाहिए. उसके अलावा योर शूज, डोंट वेयर स्नीकर्स, बिकॉज आजकल स्नीकर्स बहुत फैशन में थे, तो फॉर्मल क्लोथ्स के साथ स्नीकर्स नहीं. उससे अच्छा फॉर्मल स्नीकर्स पहनो, वो भी मिलते हैं. You can have sneakers with good chunky studs, some gold or some glitter in it, वो पहनो. You can wear stilettos या high heels अगर आपको ज़्यादा चलना नहीं हो, अगर आपका रोल वो डिमांड करे. But otherwise wear small heels, block heels, closed shoes. Okay. And of course your hygiene. That is an integral part. Your hygiene has a lot many points to cover. Your oral hygiene, your hand hygiene, your feet hygiene, your grooming. Yes. Everything matters. You know what? I always do this. मेरे लिए ग्रूमिंग का एक सबसे बड़ा जो पैरामीटर है ना, दैट इज स्मेल एंड फ्रेशनेस. ये मुझे इतना ज़्यादा मैटर करता है कि मैं अपनी शूट से पहले आई मेक श्योर दैट आई एम वेयरिंग अ परफ्यूम and I brush my teeth before my every shoot. I do this because I don't feel fresh otherwise. मैं उससे जस्ट पहले I make sure कि मेरे को अच्छा स्मेल करना है और मुझे कैमरा से उसका कुछ लेना देना नहीं है obviously. Your smell travels before you. Yeah, but it somehow gives me confidence. नहीं, but it is a very important part of your clothing. हम कितना भी अच्छा ड्रेसअप हो जाए, बट अगर ग्रूमिंग ही नहीं हो तो वो डिज़ाइनर लेबल का भी कोई फ़ायदा नहीं है. एंड इट ऑल स्टार्ट्स विथ योर हेयर. ऑफिस में भी हम बहुत सारा ऑयल लगा के चले जाए. ह्यूमिड, बॉम्बे इज ह्यूमिड, दिल्ली इज ह्यूमिड. इन सच प्लेसेस आफ्टर अ व्हाइल ना दैट ऑयल स्टार्ट्स टू स्टिंक. यू मे नॉट रियलाइज बिकॉज आपने तो सुबह से लगाया हुआ है, बट पीपल अराउंड यू मे नोटिस. लंच के बाद अनियंस और गार्लिक खा लिया तो एक मिंट खा लो. इवन आफ्टर टी और कॉफी हैव मिंट. उसका भी ब्रेथ में वो रहता है, स्टेंच रहता है. Underarms, wear a deo. Check. Even your hand hygiene. Many a time, some people sweat a lot on their palms. Yes. तो have a hanky handy. क्योंकि उस टाइम पे किसी को आपको हैंड शेक करना पड़े, आपके लिए कुछ नहीं, बट उस पर्सन के लिए it'll be a very big ordeal. उसको एक स्ट्रगल लगेगा. Very true. फिर शूज, सॉक्स, उसका भी एक ओडर होता है. हर किसी के बैग में एक बेसिक पाउच, एक वैनिटी पाउच अगर हो तो उसमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मस्ट हैव है? फॉर मेन एंड विमेन बोथ, कैरी अ स्मॉल वैनिटी पाउच जिसमें आपका सैनिटाइजर आ गया, आपका लिप बाम आ गया, आपका एक छोटा सा डीओ आ गया. आजकल पॉकेट परफ्यूम्स मिलते हैं, जेप्टो पे मिलते हैं, ब्लिंकिट पे मिलते हैं. अभी ऑर्डर कर लो. अभी ऑर्डर कर लो. वेट वाइप रखो. हैव अ पैकेट हैंडी. इतना सा पाउच है, अपने बैग में डालो, रखो एट ऑल टाइम्स. कहीं भी जा रहे हो, मॉर्निंग में बॉडी मिस्ट लगाओ,
रोज वाटर से स्प्लैश करो, कुछ नहीं हो तो इन अ बकेट ऑफ वाटर, वो फिट करी बोलते हैं ना एलम, वो डालो, उससे बॉडी ओडर नहीं आएगा। ओह वाओ। आजकल ये हैंड के और फीट के ये ओडर स्प्रेज भी मिलते हैं, बिकॉज सम पीपल हैव दैट प्रॉब्लम, इट्स ओके, बट यू स्टिल हैव सॉल्यूशंस फॉर दैट, राइट। तो all these keep handy so that you don't have to run or escape or hide yourself जब ग्रुप आए या किसी से मिलना हो। Exactly. Because you may get forgotten later. But आपकी स्मेल याद रहेगी यार, वो तो ऐसा उसके साथ उसमें से स्मेल आ रही थी। ये मेरे साथ हुआ है एक्चुअली एक बार। This is something really funny. We had gone to JW Marriott to see a friend's prospective wife, जो आज उसकी वाइफ है, अच्छा, fiance, एंड उसके भाई ने शायद डिओ नहीं लगाया था। तो माई हस्बैंड वाज सिटिंग लेफ्ट टू मी एंड ऑब्वियसली इट्स बैड मैनर्स टू चेक योर फोन ऑन द टेबल, तो मैंने रख दिया था साइड में। ही केप्ट ऑन मैसेजिंग मी, आई एम नॉट लुकिंग, एंड ही जस्ट नज्ड मी कि लुक हियर। मैंने देखा और बोला चेक योर फोन, आंखों से इशारा किया, मैंने देखा। ही सेड प्लीज एक्सचेंज प्लेसेस बिकॉज आई थिंक दिस गाय इज नॉट वेयरिंग अ परफ्यूम एंड और अ डिओ एंड ही हैज अ टेरिबल माइग्रेन इशू। ओह, ही सेड बिफोर आई गेट अ माइग्रेन अटैक और हमको यहाँ से जाना पड़े, हेल्प मी आउट। ओह माय गॉड। So then he went to the washroom, I followed, and then he came and took my place, I took his. But आज भी उस पर्सन, उसके ब्रदर की वो आइडेंटिटी बन चुकी है हमारे मन में, आज भी हम उसको उसी से एसोसिएट करते, इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स। दैट्स हाउ हाइजीन मैटर्स सो मच। यस यस, योर स्मेल हैज अ लास्टिंग इम्पैक्ट। आपका डिओड्रेंट लास्टिंग हो या ना हो, मगर आपकी स्मेल लास्टिंग हो सकती है। स्मेल लास्टिंग होगी 100%। डिओज और परफ्यूम्स कितने 10 घंटे 12 घंटे चलेंगे, ये 10-12 साल तक चलेगा। Memory. This reminds me of a lot of people who knows Shah Rukh Khan always make it a point that Shah Rukh Khan smells very nice. इस पे एक वीडियो डाली थी। अच्छा, शाहरुख ऑलवेज स्मेल्स ग्रेट। वो कोलोन हो, आफ्टर शेव हो, परफ्यूम हो, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एटिकेट, हाउ यू इम्प्रेस पीपल। इट इज अ पार्ट ऑफ योर क्लोथिंग एंड ग्रूमिंग। एंड एक्चुअली देखा जाए तो ये आपका मैनर्स ही है ना। Exactly. ये आपका एटिकेट है। कितनी बार इवन मेन ये एक लास्ट नेल लंबा रखते हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, सुपरस्टिशन है कि डिग करने के लिए यहाँ कान में, नोज में, आई डोंट नो व्हाट, बट इट समहाउ इज वेरी बिग पुट ऑफ। यस, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर मैनर। एक टाइम के बाद आपको अपने परफ्यूम की स्मेल नहीं आएगी, सामने वाले को ही आएगी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू आर showing to others that I value you. Yes. क्योंकि अपने लिए अगर करना है तो मैंने जो परफ्यूम लगाया है, थोड़ी देर बाद मुझे नहीं समझ में आएगा वो, बट सामने वाले को आएगा। फिश मार्केट में हम बहुत टाइम बैठे, हमको फिश की स्मेल नहीं आएगी, बट कोई नया आएगा उसको तो आएगी ना। तो वही है, तो आगे वाले को परफ्यूम की भी स्मेल आएगी, आपने जो अनियंस एंड गार्लिक खाया है उसकी भी स्मेल आएगी। और यही आपका मिंट है और प्लेजेंट फ्रेग्रेंस है inside your mouth, over your body, वो भी आएगा। So choose what you want them to smell. So अपनी vanity kit में एक छोटा सा माउथ फ्रेशनर या मिंट रखो, एक छोटा डिओ रखो, नहीं तो एक कैरी परफ्यूम, पॉकेट परफ्यूम्स आते हैं आजकल विच आर नॉट सो एक्सपेंसिव, वो रखो, वेट वाइप रखो, सैनिटाइजर रखो, एक कोम रखो, हैंकी रखो, these little things, but इतने से पैक में आ जाता है, बट वेरी वैल्यू एडिशन। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर आप इस पूरे एपिसोड का फायदा लेना चाहते हैं तो आप गुंजन शाउट्स पे जाकर इसे देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।